These days, most of us think that to serve the country or to do something for the country, we need to get into the army or probably just find a way out wherein just stop studying or don't pursue your education. But well, do you guys know that even if you have a certification or a degree in social work, you can actually serve the country in numerous ways which you have no clue about. So guys, in this video we will be talking to one of the most amazing persons that I've met, who's helping the country in such beautiful ways and has represented India on an international level, Miss Dolly Aswani, where she talks about her journey in social working. I'm so happy to have an interaction with her. So before we proceed, don't forget to watch all of these interviews which I have actually transcribed and made it the best compact way on my YouTube. But go check my Instagram out, and until then, don't forget to watch it till the end, and don't forget to like, share and subscribe. Here we go. So I was just talking about, like, there is this word which I'm not able to pronounce, which is in your bio as well, that you've won a competition where out of all the people, you were the only one representing India. So I would first like you to please talk about how did you actually get into it? I mean, being a chemical engineer, being a, like, some, ठीक है, engineering में एक time के लिए we can understand you're doing something else, जैसे ENTC हो गया, computers हो गया, तो समझ सकते हैं. Chemical engineering से how did you actually, change your field completely into getting into social service? Okay, so for the chemical engineering part, na? Yeah. You want to know about that? Okay, so BTech में क्या होता है कि we are sent for this 6-month internship for the whole semester. We are being sent on field to do a practical internship. So I was selected in this government CSIR National Chemical Laboratory lab in Pune, and that was 2017. And obviously I went there, and क्योंकि सरकारी lab था, so we used to work for like Monday to Friday करके अपना था, and yeah. And then Saturday, Sunday, the whole vicinity was closed. So I did not know what to do. And Pune being Pune, and मैंने कहा चलो ठीक है, we'll explore. And the first thing I explored was what to do on weekends, literally on Google. And Pune being Pune, वहाँ पे night clubs and all these things. And what catched my eye was that a lot of people, Puneites, come together on Saturdays and Sundays and clean cities 6 o'clock in the morning. City ka road 6 o'clock in the morning. And that initiative I remember was called Swachh Bharat Swachh Pune. So I thought चलो ठीक है, वैसे तो लैब के लिए उठ नहीं पाते हैं सुबह 8 बजे, तक सैटरडे संडे को 6 बजे उठेंगे और सफाई करने जाएंगे. And that, I mean, that was one of the things that कहते हैं ना, that spark, it was just ghee ready था. The spark was that the Swachh Bharat Swachh Pune was the spark. Then one after another, in those 6 months, let me be honest, no Saturday Sunday I left for to just chill back at home. वो पूरे Saturday Sunday पुणे में I used to wake up in the morning or come late at night, घर पे late आती थी, just after volunteering a lot. फिर उसके बाद मुझे समझ में आया, यार इतना तो मैं Monday to Friday अपनी लैब में पैशनेट होके काम नहीं कर रही हूँ जितना मैं हर Saturday Sunday वॉलंटियरिंग के लिए काम कर रही हूँ. तो मुझे समझ में आया कि अरे डॉली, कुछ तो किक है यार, मतलब समथिंग इज देयर. तब तक भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि उसको करियर में बदलेंगे या नहीं. And then see, I come from this college called Banasthali University, Jaipur. And Banasthali is a very like Gurukul type का college. हाँ, पूरा गांव में है और वहाँ पे पूरा बहुत सारे गांव हैं आसपास, और वहाँ की गांव की औरतें, आदमी, सबको कुछ 800-850 एकड़ का college है. I'm speaking in Hindi. Is that okay? Should I speak in English? Yeah, any language. No language. Cool. Okay, I just don't know your audience. That's fine. So yeah, so I came back to Banasthali, and it was my last semester, 8th semester. Okay, and all this while I did not know that Banasthali University had a women empowerment cell. तो 7th semester में तो मैं पुणे से वापस आके 8th semester, last semester, just chilling in college, just हम time pass कर रहे थे, एग्जाम्स देने चले गए, नहीं तो पास तो थे ही अपन लोग. मुझे पता चलता है, अच्छा, my college has a women empowerment cell where टोंक, बनस्थली, नेवई, आसपास के गांव थे, वहां से औरतें आती थी और उनको कॉटेज इंडस्ट्री में जॉब्स दी जाती थी. और ये मुझे लास्ट सेमेस्टर में पता चल रहा है. आफ्टर ऑल द वॉलंटियरिंग गिग आई डिड इन पुणे, आई गेट टू नो कि ऐसा है. एंड देन अगेन फॉर दोस 6 months आई वाज
literally I had weekends or weekdays पे classes and weekends पे all the time I was at that center talking to women, giving them की financial advices कि चलो बैंक लेके चलती हूँ, तुम्हारा खाता खुलवाती हूँ, FD में पैसा डाल दो, RD में पैसा डाल दो. And oh my God, I have some pictures also on my feed with all the women I used to spend time with. We used to call them बाईजीज. तो बाईजी बोलते हैं वहां पे, दीदी भाभी कुछ नहीं, वहां पे बाईजी बोलते थे. तो फिर मैंने कहा यार 3 साल में क्या कर रही थी केमिकल इंजीनियरिंग में, मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं पुणे में 6 महीने में सैटरडे संडे वॉलंटियरिंग कर रही हूँ, कॉलेज में आके मैं सैटरडे संडे सुबह जल्दी जग जा रही हूँ जस्ट टू मीट द बाईजीज एंड स्पेंड टाइम विद देम एंड टू अंडरस्टैंड कि उनको मतलब हाउ सम, क्योंकि राजस्थान था ना, वो राजस्थान में कॉलेज है, तो वहां पे अभी भी नो ऑफेंस टू एनीवन, अभी भी चाइल्ड मैरिजेस होती है. मैरिज नहीं तो गौना कर देते हैं, मतलब एंगेजमेंट कर देते हैं, और फिर बच्ची 18 साल की हो जाती है तो उसको विदा कर देते हैं. तो ऐसी ऐसी औरतें भी थी वहां पे जो बोला अरे मेरा तो 3 साल की उम्र में ही हो गया था गौना पक्का, और 18 में मेरी शादी कर दी, ये वो फिर बनस्थली ने उसको जॉब दी. एंड ओ लॉर्ड, फिर तो मेरा सनक ही गया. आई ऑब्वियसली सैट फॉर माई प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट देन आई केम बैक टू आगरा. ठीक है, एंड दैट टाइम आई हैड 2-3 जॉब प्लेसमेंट ऑफर्स, नॉट फ्रॉम core chemical engineering backgrounds, but for the different management placement jobs that I sat for. Then I came back, and then when I came back, again, see, मेरी joining थी जुलाई 2018 में, और मई 2018 में मेरे पास एक ऑफर आता है आगरा से. और let me be honest, ये ऑफर कैसे आया? So I come from a family which is not culturally educated. तो मैं अपनी फैमिली की सबसे पहली डिग्री होल्डर हूँ, मतलब मेरे माता पिता जी भी 12th पास हैं, 10th पास है, तो हम ऐसे कल्चरली इंटेलिजेंट बैकग्राउंड से नहीं आते हैं. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज माय पेरेंट्स डोंट हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन द सर्विस सेक्टर, क्योंकि सारा खानदान मेरा इज इनटू बिजनेस, तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि बाहर का सर्विस इंडस्ट्री कैसे काम करता है वगैरह. तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही है ना लिंक्डइन का नाम सुन लिया, लिंक्डइन. तो मेरे को ये पता था कि टू गो एनीवेयर इन माई लाइफ, देखो मेरे पास बैकिंग नहीं है, माई पेरेंट्स आर नॉट दैट वेल कनेक्टेड, दे आर अफ्लुएंट, पैसा है उनके पास पर कनेक्शंस नहीं है, तो कैसे होगा. तो फर्स्ट ईयर से मैंने ठान लिया था भैया लिंक्डइन हमारा माई बाप है, हम लिंक्डइन पे एकदम बेस्ट तरीके से वील यूज इट. तो फर्स्ट ईयर से ही ना मेरे, और उस टाइम पे 2014-15 में कोई लिंक्डइन पे था नहीं, मेरे पीयर्स ही नहीं थे. So even this internship that I landed, CSIR National Chemical Laboratory, I landed through LinkedIn. I contacted a principal scientist who was working in Dubai that time, and then she connected me to some person in Pune. तो ऐसे करके था. तो जब मैं वापस घर आई after my engineering, there was this Delhi का NGO who saw my LinkedIn and they wanted to start an Agra chapter in Agra, and they wanted to उनको अपना बढ़ाना था NGO का operations. And that's when they contacted me and they said that we have an offer for you. Why don't you work for us? तो मुझे वो उतनी ही सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे उस टाइम पे जितना मुझे गुड़गांव जाके मिल रही थी. तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब गुड़गांव जाके रेंट वगैरह भी देना पड़ेगा, ये सब है, और तब तक तो केक आ चुका था सोशल वर्क का. तो मैंने कहा चलो ठीक है. अब उस टाइम पे भी कुछ नहीं पता था क्या करना है, केमिकल इंजीनियरिंग का सब CE सब घूम हो चुका था. और 2018 में मैंने कहा चलो let's go with your heart, and I started working for them, and there was then no looking back. That's how I landed up in the social sector, the impact sector. To be very honest, I'm gonna ask you this, okay? Did you ever like कभी भी आपको ऐसा कभी feel हुआ कि मैंने गलत decision लिया है, that maybe I should go back and work in the technical field? हर दिन. Is it? Because let's face it ना यार, कुछ एक साल बाद 2019 तक मेरा फ्रेंड्स लोग बड़े बड़े पैकेजेस पे बैठे थे. My very good friends, I was happy for them, but then again मुझे लगता था यार what are you doing? You are just earning like 10 to 15,000 a month, and that was sitting at home. You're not growing, you're not meeting new people. तो खुद कर रही है जो कर रही है, but then what? Because वो लोग भी इंजीनियरिंग करके निकले और वो इंजीनियरिंग अपने फील्ड में they're doing good. But what about you, Dolly Aswani? So every time I felt this way. But again, every time I felt this way, something other kept on happening. Because then when I started working with this NGO,
क्या I told you that story. We were talking once and I told you कि I was recently back home and then नवरात्रे थे and then some kids come to my house and say कि दीदी वो नवरात्रों का जो प्रसाद बनता है 9th और 8th डे पे वो हमको दे दो. मैंने कहा यार इतने सारे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, मतलब माई कॉलोनी वॉज अ गेट बंद कॉलोनी, हाउ आर दीज किड्स कमिंग. तो मुझे यही नहीं पता था कि जहां मैं 10 साल से रह रही हूँ जिस घर में, उसके 1 किलोमीटर दूर एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड गांव है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर होगा, और वहां से बच्चे हर साल आते हैं. मैं तो थी नहीं, मैं तो कॉलेज में थी. तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आज तो हमारे घर में प्रसाद नहीं बना है, और नवंबर का ही टाइम था, तो 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे बहुत पास था. मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे स्कूल आऊंगी, मुझे बताओ कौन सा स्कूल है तुम्हारा. एंड देन 14 नवंबर हैपेंड एंड देन what my eyes saw that day, my my dimag and my body could not believe. God, I have saw that goosebumps. I remember. what I saw was यार नवंबर की सर्दी में अच्छा खासा बड़ा स्कूल है, 2-3 रूम्स बने हैं अंदर, बच्चे बैठे हैं बाहर दरी लगा के. स्कूल के अंदर नहीं बैठे हैं, बाहर बैठे हैं ठंड में, और बाहर नाला खुला हुआ है. वहां पे उस टाइम पे वो ये डेंगू मलेरिया भी बहुत ज्यादा चल रहा था. कहा यार ये बाहर क्यों बैठे हैं. मैं अंदर गई तो देखा अगर वो अंदर बैठते ना, वो स्कूल के अंदर बैठते, स्कूल ऐसे मस्त तरीके से गिर रहा था नीचे. मतलब द थिंग्स ऑन द रूफ केप्ट कमिंग डाउन. और वहां पे कुछ 25 बच्चे बैठे हुए थे. 25 भी मैं बहुत ज्यादा नंबर बोल रही हूँ. तो मैंने कहा, मैंने टीचर से बात की, मैंने कहा यार क्या है ये, व्हाट इज दिस. तो बोले क्या, दिस इज नॉट गुड, पिछले 30 साल से ये स्कूल ऐसा है, व्हाट इज न्यू, दीज किड्स आर सिटिंग आउटसाइड बिकॉज देयर पेरेंट्स कांट अफोर्ड टू पुट देम इन अ प्राइवेट स्कूल. तो तब मेरी फिर सन की. अब आई एम टेलिंग यू दैट मेरे दिमाग में चल रहा था दैट आई एम अ फेलियर, और मैं कमा नहीं रही हूँ, और मुझे नहीं पता मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हूँ, क्योंकि 1 साल ऑलमोस्ट 6-8 मंथ्स हो चुका था मेरे को ग्रेजुएट हुए हुए. तो मैंने कहा चलो चलो अभी इसको फिर पीछे रखते हैं, अभी जो आंखों के सामने है उस पे काम करते हैं. तब मैंने सोचा कि यार डॉली असवानी तू बीटेक ग्रेजुएट है, तेरे हाथ में फोन है, तेरे घर में इतना पैसा है कि तेरे को इंटरनेट पैक मिलता है फोन में, अगर तू कुछ नहीं करेगी तो कौन करेगा इस स्कूल के लिए. Very true. And that's when again the second thing started happening. I literally, ये जो अकाउंट है मेरा अभी, उस टाइम पे कुछ मेरे 500 भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, ऐसे 300-400 फॉलोअर हुआ करते थे, और मैंने ऐसे स्कूल की फोटो डाल दी. और ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन मेरा मम्मी पापा है, ठीक है, एवरीथिंग आई डिपेंड ऑन देम फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ थिंग. तो मैंने तो सीधा फोटो खींचा, इंस्टाग्राम ट्विटर पे डाल दिया, @CMO ऑफिस, @आगरा प्रशासन एंड एवरीथिंग. देखो बच्चों के ऊपर गिर जाएगा. एंड वहां पे आजू बाजू के MLA और DM ऑफिस में मैंने चिट्ठियां डालना शुरू कर दी. मैंने कहा भैया बच्चे मर जाएंगे, क्या कर रहे हो तुम लोग. तो वहां से कुछ जैसे प्रेशर आया होगा, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. फिर मैंने कहा चलो अभी सरकार तो काम कर नहीं रही है, हम क्राउड फंड करते हैं. मैंने कहा मैं पैसा नहीं मांग रही हूँ, दिस इज द स्कूल, दिस मच इज द नंबर ऑफ सीमेंट का बोरीज रिक्वायर्ड, दिस इज गिट्टी, दिस इज पत्थर, दिस इज पेंट रिक्वायर्ड, ये रहा स्कूल का एड्रेस, मैं स्कूल से 1.5 किलोमीटर दूर रहती हूँ, मेरे घर पे आके वो सामान देके जाओ. आई डोंट नो. एंड देन द आगरा जनता स्टार्टेड कमिंग लाइक क्रेजी. कोई सीमेंट भेज रहा है, कोई पेंट भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है. एंड आई टेल यू ना, दैट वाज नवंबर 2018, और मैं अप्रैल 2019 की बात बता रही हूँ. दैट स्कूल इज द बेस्ट प्राइमरी स्कूल, वॉज द बेस्ट प्राइमरी स्कूल. अभी तो कोविड आ गया ना, तो उस टाइम पे इट वॉज द बेस्ट प्राइमरी स्कूल इन 5 किलोमीटर रेडियस. तो मतलब मेरे घर के भी रेडियस में सबसे अच्छा सरकारी प्राइमरी स्कूल विद बेस्ट फैसिलिटीज. एंड राइट नाउ, ऑब्वियसली बिफोर कोविड, जब कोविड स्टक किया, विद इन 2 months पेरेंट्स स्टार्टेड सेइंग क्या बढ़िया स्कूल है. यहाँ पे तो दीदी भैया भी आते रहते, क्योंकि आई स्टार्ट पुटिंग दीज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया. तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारा बर्थडे है, कम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करो, खाना दो यहाँ पे आके, स्टेशनरी दो. तो लोग आते गए वहां पे, और फिर पेरेंट्स ने देखा ये तो बढ़िया स्कूल है. तो कोरोना स्ट्रक करने से पहले अप्रैल 2019 में दैट स्कूल हैड 85+ किड्स. फ्रॉम 25 इन नवंबर टू 85+ किड्स. टीचर कह रही है भैया हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास 2 रूम्स है, ये तुम बच्चे और नहीं चाहिए हमको. Again, then one thing after the another, there was no stopping. And I would not lie, the failure thing was there. So yeah. Also, Dolly, now the award that you won, you know, you were in top 3 people. You went and you
represented India overall. You're the only one from India to get selected. So can you tell us the journey for that? How did you get to know about it? How did you apply? What was it all about? So it was July 2020. Again, peak बोलते हैं ना, peak anxiety, depression वाला level, not depression, anxiety. I won't use that word loosely. कि यार कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में, what is this? Then I came across a story by this influencer called Ranveer Alabadia, and उसने ऐसा story डाला था कि there's this mass shot UAE. It is a, और तब pandemic struck ही किया था, कुछ मई या अप्रैल में the pandemic had come, and मैं अपनी internship के बाद वापस आई थी आगरा में. I was there. I'll talk about the internship later. And then I was clueless कि भैया क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, रातों में नींद नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है. Then I saw this guy's story और उसमें लिखा था कि मार्स शॉट यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई. इनकी सरकार एक कंपटीशन ला रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप whatever your dream is, whatever you want to do in your life, just post a 1-minute video about it, and then the UAE sarkar and Kevin Hart. So there is this influencer and actor and comedian, US actor and comedian called Kevin Hart. उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था ये. एंड तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, वीडियो ही डाल देते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है जिंदगी में. और तब मैं ऑलरेडी बच्चों के साथ काम कर रही थी, बट देन पैंडेमिक हैपेंड एंड आई हैड टू स्टॉप एवरीथिंग. मैंने एक वीडियो डाला छोटा सा कि यू नो if I get selected for this competition, I want to open basic literacy centers across India. क्योंकि मैंने देखा था कनिष्का कि स्कूलों की कमी नहीं है, टीचर्स की कमी नहीं है, इनिशिएटिव्स की कमी नहीं है. बच्चों के, यार बच्चा 12-13 साल का होता है, मैंने खुद देखा है बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए कि दीदी यार मेरे घर में पापा दारू पीते हैं, मम्मी काम करती है, मैं दिन में बाहर ठेले पे बैठ जाता हूँ, वो जो जिसपे पान और गुटखा सब मिलता है, मुझे दिन का 100 रुपया मिलता है, तो मैं क्यों नहीं कमाऊं. 6 घंटा मेरे पास टाइम नहीं है स्कूल जाने का. तो मेरे दिमाग में ना तब से, जब से मैंने वो स्कूल के साथ गांव में काम किया था, तब से मेरे दिमाग में था कि यार ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो बच्चा जाए. आई एम नॉट प्रमोटिंग चाइल्ड लेबर यहाँ पे, बट उस बच्चे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कनिष्का, टू ब्रिंग ब्रेड एंड टू ब्रिंग फूड ऑन द टेबल एवरी नाइट. तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ होना चाहिए, जिससे एक सेंटर होना चाहिए हर सिटी में, जहाँ पे हम जैसे लोग, तुम जैसे लोग, या फिर जो यूपीएससी वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं, जो दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो वहां पे उस सेंटर को आके एक्सेस करें, बुक्स, रिसोर्सेज, वाईफाई एक्सेस करें. एक चीज बदले में, वहां पे वो जो बच्चा सुबह से शाम तक काम कर रहा है, वो अगर बच्चा दिन में 1 घंटा निकाल के आ रहा है, तुम्हारी ड्यूटी है उस बच्चे को 1 घंटा पढ़ाने के लिए, क्योंकि उस बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया है. एटलीस्ट उस बच्चे को ये तो होना चाहिए कि यार ये दीदी भैया मुझे पढ़ा रहे हैं, ये दीदी आने वाले टाइम में ये दीदी इतना अच्छा कमा रही है, ये दीदी आईएएस बन गई है, तो आई हैव समबडी टू लुक अप टू. तो ये कॉन्सेप्ट आ गया. फिर तो ना everybody, thousands of people on Instagram posted this hashtag mass shot करके, और फिर ना उसमें से 15 लोग सिलेक्ट हुए. मैंने कहा अरे मेरा लिटरली, आप अभी अगर मेरे उस पे जाओगे, मेरे प्रोफाइल पे जाओगे, फीड में, तो मैंने ना बहुत डर के, मेरे फ्रेंड्स हैं शुचिता, लवकेश, तुम लोग को मिल गया है, ठीक है, मेंशन मिल गया तुम लोग को, क्रेडिट्स मिल गए. तो मैंने इन लोग को बोला यार मेरा मजाक उड़ेगा, मैंने ये वीडियो डाल दी, तो कहते डाल देना, तो क्या वो डिलीट कर देना. तो फिर मैंने नीचे लिखा था कि मैंने कहा दिस इज माई ड्रीम एंड आई वुड लाइक टू डू दिस इफ आई गेट सपोर्ट फ्रॉम यूएई. तो मैंने नीचे पीएस में लिखा था, पोस्ट स्क्रिप्ट, अरे अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो बुढ़ापे में कर लेंगे कभी जब पैसा होगा. तो मैंने आई हैव लिटरली रिटन दिस इन जुलाई 2020 कि अगर नहीं भी हुआ तो हम लोग कर लेंगे. फिर उन थाउजेंड्स ऑफ पीपल में से कुछ 15 लोगों की वीडियो सिलेक्ट हुई, अगेन फ्रॉम यूएस, अफ्रीका, दुबई, इंडिया में से एक ही हुआ था मेरा. देन उस 15 में वोटिंग प्रोसेस थी कि उसके बाद 15 में से 5 लोग सिलेक्ट होंगे. फिर मेरा सिलेक्शन हो गया. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो मजाक हो रहा है. ठीक है, एक इंडिया से, एक अफ्रीका से, एक यूएई से. तो मैंने कहा चलो अच्छा, टॉप 5 में भी हो गया. फिर टॉप 5 में क्या हुआ ना, हम 5 का इंटरव्यू हुआ, और मैं ऑब्वियसली पूरा साड़ी वाड़ी पहन के रेडी थी. मैंने कहा
यार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साड़ी वाड़ी पहन के बैठेंगे। अब सामने इंटरव्यूअर, अब मुझे ना उस टाइम तक केविन हार्ट भी नहीं पता था कौन है केविन हार्ट, और मैंने उसको खोल के भी नहीं देखा था इंस्टाग्राम पे। वो तो मुझे बाद में पता चला कि 109 मिलियन फॉलोअर्स हैं केविन हार्ट के, मूवीज में आता है, कॉमेडियन है, प्रोड्यूसर है। कहा अच्छा, तो ये बंदा मेरा अभी इंटरव्यू लेगा, और मैं ऐसे करके डरी हुई कैमरा के सामने बैठी हुई हूँ, मेरा इंटरव्यू केविन हार्ट लेगा। सामने कैमरा खुलता, सामने बैठी होती है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा द टेनिस प्लेयर। Yeah, got एंड it. I'm like अच्छा, ये क्या हो रहा है? तो फिर पता चला कि जितने भी 5 लोग थे अलग अलग अपनी एथनिसिटी से, कोई इंडियन था, कोई अफ्रीकन था, तो वहां के लोग उन्हें Represent कर रहे क्या बोलते हैं, as नहीं उनका panelists. इंटरव्यू ले रहे थे। हाँ, पैनलिस्ट एज अ पैनलिस्ट इंटरव्यू ले रहे थे। तो एक का इंटरव्यू जय शेट्टी ने लिया, एक का इंटरव्यू केविन हार्ट ने लिया। केविन हार्ट का जो अफ्रीकन थे विलियमसन सिंटाइल, केविन हार्ट ने उनका लिया, तो मेरा सानिया मिर्जा मैम ने लिया। अब मैं आउट ऑफ ब्रेथ हो रही हूँ, मैंने कहा अच्छा सानिया मिर्जा मैम बैठी है सामने। वो मुझे ऐसे समझा रही थी कि डॉली डरो मत, just answer. And then after that from that 5 people, 3 people got selected, one from India, me, second from Haiti, and third from America. And that result was declared by the यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूएई। जैसे हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, स्मृति ईरानी हो गई, अमित शाह हो गए, ये सब लोग। तो वैसे वहां की नूरा अल काबी मैम थी, उन्होंने हमारा रिजल्ट अनाउंस किया। और कुछ इस मार्च में, मार्च 2021 में पूरा फंडिंग, जो मैंने बोला था कि मुझे वो सेंटर्स खोलने अक्रॉस इंडिया, और ये सब बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बीच में सब कुछ हुआ, दुनिया भर का चीजें हुआ, ऑल काइंड्स ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड ऑल दैट थिंग्स। एंड देन the funding to start such centers in India finally arrived from UAE. And Wow. again, this the second wave happened, but work has not stopped. We'll start soon. We have already 3 centers planned. One in Agra, one in Bijanbari. Bijanbari is a small gaon in West Bengal near Darjeeling. ये वाला सेंटर खोलने के लिए। एंड द थर्ड वन इज होपफुली इन झारखंड, खरीकाबाद, कोल माइनर्स का एक विलेज है वहां पे। Lovely. That Oh is- my god. I have goosebumps. See, I still have it. You know, it is so nice. I'm so Thank you. happy for this, Dolly. So, if you ever have an opportunity for Parents me or है। people like me, yeah, anyone here who's watching, if they want to be a part of it, what is the procedure that we can, help you with it somehow? ठीक है, तो I mean I have a page. There's a reason why my name is Anganwali Didi. So it was not Anganwali Didi before. I had a username called Women on a Mission India. But then my NGO is called Angan for All, and there's a reason why we have named it Angan for All. It's not just a center for poor people to come and access resources. It's also a center where people like you and me can come and access resources. And जैसे एक तरह से co-working space आप समझ लो, बस जस्ट Got it. छोटी छोटी सिटीज में, Tier 2 Tier 3 सिटीज में कमी है इस चीज की। हर कोई घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता, अगर पढ़ाई कर भी सकता है तो इतनी रिसोर्सेज नहीं होती उसके पास। तो इसलिए we said then that we named it Angan for All because it's a melting pot of haves and have nots. जिसके पास है वो भी वहां आ रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी वहां आ रहा है। तो आप लोग आप मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करके आंगन फॉर ऑल, फाउंडर एट आंगन फॉर ऑल लिखा हुआ है मैंने, आंगन फॉर ऑल पे जाइए, वहां एक मैसेज ड्राफ्ट करिए, आपको एक फॉर्म भेज दिया जाएगा, आप उस फॉर्म को भर लीजिए। क्योंकि हमारा ये प्लान है कि अगर आपके सिटी में वो सेंटर नहीं भी है, पर अगर आप हमारे बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, तो आप ऑनलाइन उन्हें सिखा पाए। दैट इज द प्लान। Thank you for watching, guys. This video has been one of the most closest interviews to my heart because she has given so much information for people who really want to serve the society and do good for the society. So if this video helps you, don't forget to share it with your friends and spread the word as to how can you do something or do your bit for the society. Until then, don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to check my and Dolly's social media handles in the description box below, and stay tuned for more videos coming in. Take care. Bye bye.